straight away start with our first speaker, Mr. Mohit Mangal sir, who has been with us across the years and supporting us with his immense knowledge and guidance. And would just like to introduce him to brief about Mr. Mohit Mangal. I think I can name him by multiple names. Maybe a social entrepreneur, a motivational speaker, a philanthropist, or a career counselor. Basically, a trained structural engineer with a master's degree with him. Mr. Mohit Mangal has been a nationally renowned social entrepreneur and a career counselor across the country. There's an interesting story to him. Like he quit a top and a good cozy job in 2003 in an FMCG sector, just because of his inclination towards career counseling or motivation or towards doing something good towards youth. Mr. Mangal has been since more than 17 years into this field of being motivational speaker and a counselor. I think till date, almost 5 lakh of students have identified the right path with help of Mr. Mangal. He is an academician, a mentor and a guide to more than 50,000 young students. Driven by assurance of having made substantial difference in the society and motivated by zeal to surpass his career counseling and inspiring the youth, he is running an organization also in the name of IQ Ideas. There's a non-for-profit organization almost which gives a career counseling and a right path to 1 lakh students every year. He has been a successful speaker and an eminent speaker at top of the premier institutes such as IIM Ahmedabad, Nirma University, IIM Bangalore, IITs, and many other to name for. With this, I would just like to conclude a brief introduction about Mr. Mangal and would like to hand over the days to Mangal sir to take this ahead. Thank you so much, Abhishek, for your such generous and kind words introducing myself. I don't think I require so long introduction. So if my voice is absolutely clear, I would straight away like to get on to my presentation. Thank you so much, Tejas bhai. Thank you so much, Jigish bhai. Thank you so much, Bhavesh bhai. In fact, Tejas has already eaten away 10 minutes of mine. So I'm okay. I'll have to wrap up the things within 20 minutes. But in that, I think I'll split it. I'll speak for 16 minutes and 4 minutes we will give to the audience to ask their questions. Right? Okay. So I'm straight away getting on to the presentation of the day. Okay. I hope if you can just give me a thumbs up, Tejas bhai or Jigish bhai, if my voice is audible and video is clear. Okay, great. Thank you so much. So Jito Ahmedabad chapter, thank you very much for hosting this 8th edition of Career Counseling 2020. My topic which has been allocated to me is guidance on all science stream entrance exams. So what I'm going to do today with you guys is first, Tejas bhai brought out a very beautiful, point where he said majority of the students when they are entering in grade 9, 10, 11, 12, ये सारे बच्चे जो हैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि आगे करियर की चॉइस किस तरीके से करनी है. आज की डेट में गूगल जो है वो सबको अवेलेबल है और कोई भी तरह का करियर या कोई भी तरह का प्रोफेशन या बैकग्राउंड आप गूगल में डालें तो गूगल कुछ ना कुछ 10, 20, 50, 100, 200, 500 आंसर स्पिट आउट कर ही देगा. लेकिन पॉइंट ये है कि उसमें से सही करियर चूज कैसे करना है. हाउ डू यू आइडेंटिफाई विच इज द राइट करियर फॉर यू. सो इस चीज को माइंड में रखते हुए मैं आप सब लोगों से एक छोटा सा सेल्फ असेसमेंट टूल एक आपको दूंगा. इस सेल्फ असेसमेंट टूल के बेसिस पे जितने भी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उनके बच्चे का क्या ओरिएंटेशन है. और उसके बाद मैं प्राइमरीली बात करूंगा साइंस के रिलेटेड जितने भी एरियाज इंडिया में अवेलेबल हैं उनके ऊपर, उनके डिग्रीज क्या क्या अवेलेबल है, उनके टेस्ट क्या क्या अवेलेबल हैं. लेकिन इस सेल्फ असेसमेंट टूल से बच्चों को ये भी आइडिया आ जाएगा कि उनके किस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे उनको किस तरह की स्ट्रीम सिलेक्ट करनी चाहिए. स्ट्रेट अवे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन. 3 तरह के टोटल बच्चे होते हैं. पहली कैटेगरी बच्चों की है जिनको हम कहते हैं एकेडमिक ओरिएंटेड. ये वो बच्चे हैं जिनको पढ़ने लिखने में, नॉलेज गेन करने में, एजुकेशनल वीडियोस देखने में, रिसर्च करने में बहुत मजा आता है. तो इन बच्चों को हम कहते हैं दे आर स्टूडियस, दे आर इंटरेस्टेड इन बुक्स
and they love to spend long hours on research through books and or internet. ये पहली कैटेगरी है बच्चों की, which is academic oriented. दूसरी कैटेगरी जो बच्चों की है, that is people oriented. ये वो बच्चे हैं जिनको पढ़ने लिखने में उतना मजा नहीं आता है जितना लोगों को मिलने जुलने में, डिस्कशन करने में, डिबेट करने में, आर्ग्यूमेंट करने में, इंटरैक्शन करने में ज्यादा मजा आता है. The consumption for their brain comes from interaction. So we say ये लोग हैं who are social creatures, who can easily relate to people, and they find it easy to interact and communicate even with strangers. किसी से भी बात करने में ये लोग कंफर्टेबल फील करते हैं. और जो तीसरी कैटेगरी बच्चों की है, वो हैं जिनको ना तो पढ़ने लिखने में मजा आता है, ना लोगों को मिलने जुलने में मजा आता है. उनको कुछ नया हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करने में ज्यादा मजा आता है. उन बच्चों को हम कहते हैं दे आर क्रिएटिव ओरिएंटेड. दे आर वेरी गुड विथ थिंग्स लाइक ड्राइंग, डांस, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, मिमिक्री, कुकरी, film making, photography, digital editing, and so on and so forth. So ये वो बच्चे हैं who are good at creative things, who are always interested in doing new and innovative things. And the best part is ये तीनों orientation, academic, people and creative, ये तीनों orientation हर बच्चे में होती है. सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि आप में, अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप पेरेंट हैं, तो आपके बच्चे में इस ओरिएंटेशन का ग्राफ क्या है. बच्चे की हाईएस्ट ओरिएंटेशन कौन सी है, सेकंड लेवल पे कौन सी है, थर्ड लेवल पे कौन सी है. ऐसे बच्चे भी होते हैं जो दो ओरिएंटेशन का मिक्सचर होते हैं, तीसरा ओरिएंटेशन या उससे हायर है या उससे लोअर है. ऐसी कैटेगरी के बच्चे भी होते हैं जिनकी तीनों ओरिएंटेशन बहुत ब्यूटीफुल मिक्सचर एक ही लेवल पे होती है. अगर आपने पिछले 2 से 2.5 मिनट मेरी बात सुनी है और समझने की कोशिश की है, आई एम श्योर अभी तक आपको खुद का ग्राफ समझ आ गया होगा. वो ग्राफ का मतलब है कौन सी ओरिएंटेशन आपकी हायर स्केल पे है, कौन सी इंटरमीडिएट स्केल पे है, कौन सी लोअर स्केल पे है. नाउ इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम 10th के बाद 4 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं. पहली ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं साइंस ए ग्रुप, जिसमें प्राइमरी सब्जेक्ट्स आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के. दूसरी ऑप्शन है साइंस बी ग्रुप, जिसमें प्राइमरी सब्जेक्ट्स आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. तीसरी ऑप्शन अवेलेबल है कॉमर्स, जिसमें सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज. और चौथी ऑप्शन जो इंडिया में अवेलेबल है 10th के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए, वो है आर्ट्स, या जिसको ह्यूमैनिटीज भी कहते हैं. इसके अंदर प्राइमरी सब्जेक्ट्स जो आते हैं वो हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, political science, sociology, psychology, and there are few schools who would also give you something like philosophy. अब इस 4 ऑप्शंस में से पहला कंफ्यूजन 10th लेवल पे बच्चों में ये आता है कि इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाए. तो मैं क्विकली इन चारों के लिए ओरिएंटेशन क्या चाहिए वो आपको बता देता हूं. उसके बाद मैं स्ट्रेट अवे साइंस के पोर्शन को कवर करने के लिए चलूंगा आगे. साइंस ए ग्रुप लेने के लिए जो बच्चे साइंस ए ग्रुप में इंटरेस्टेड हैं या लेना चाहते हैं, उनको जो ओरिएंटेशन का रिक्वायरमेंट है वो है एकेडमिक ओरिएंटेशन. उनका एकेडमिक ओरिएंटेशन हाई होना ही पड़ेगा. क्रिएटिव ओरिएंटेशन है या नहीं है बहुत फर्क नहीं पड़ता, पीपल ओरिएंटेशन है या नहीं है बहुत फर्क नहीं पड़ता. सो साइंस ए ग्रुप के लिए द ओरिएंटेशन विच इज रिक्वायर्ड इज एकेडमिक. सेकंड, साइंस बी ग्रुप के लिए the orientation which is required is a combination of academic and people. क्रिएटिव ओरिएंटेशन है या नहीं है बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका एकेडमिक और पीपल दोनों ओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. तीसरा है कॉमर्स. कॉमर्स में मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं, बच्चों को पूछता हूं आप क्यों कॉमर्स करना चाहते हैं या आप क्यों कॉमर्स में गए, तो बच्चे बोलते हैं कि सर साइंस लेना नहीं था, बहुत टफ था, आर्ट्स में हमको ये लगा कि सब लोग हम पे हंसेंगे. दैट इज दी थॉट जो काफी लोगों के माइंड में मैंने देखा है. तो हमने सोचा कि कम पढ़ाई वाला कॉमर्स है तो हम कॉमर्स ले लेते हैं. दैट इज नॉट द वेरी राइट थिंग. इफ यू ऑल अंडरस्टैंड, कॉमर्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट वी कॉल एज फाइनेंस. और फाइनेंस के अंदर जो ओरिएंटेशन बच्चे को आगे जाने के लिए चाहिए दैट इज एकेडमिक. पीपल ओरिएंटेशन है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिएटिव ओरिएंटेशन है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता. और जो चौथा ऑप्शन है दैट इज आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज,
मैं बहुत स्ट्रांगली बच्चों को बोलता हूं, नंबर 1, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज इज अ ग्रेट फील्ड टू गो विद। कोई भी अगर आपको ये कहता है कि ये फील्ड अच्छा नहीं है, इससे बेटर फील्ड्स हैं, सो माय थॉट इज आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज इज वन ऑफ द बेस्ट स्टडी व्हिच यू कैन डू। Although I come from an engineering background, I come from a management background, still I very strongly believe that arts is equally beautiful as a course or a curriculum or a stream. और आर्ट्स में जाने के लिए कौन से बच्चे का जो ओरिएंटेशन है वो सही ओरिएंटेशन है, जिस बच्चे का एकेडमिक, क्रिएटिव और पीपल ओरिएंटेशन तीनों का बहुत प्यारा मिक्सचर है, वो बच्चा ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के लिए सबसे अप्रोप्रिएट बच्चा है। So with this, I will straight away move to the first league within sciences. तो मैंने ये जितनी साइंसेस हैं इन सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिया है। तो यू कैन सी द फर्स्ट साइंस और साइंस ओरिएंटेड एरिया विच आई एम डिस्कसिंग विद यू इज एग्रीकल्चरल साइंस। किसको एग्रीकल्चरल साइंस में जाना चाहिए? जिस बच्चे का एकेडमिक ओरिएंटेशन बहुत हाई है, फॉर श्योर। अलॉन्ग विद दैट, जो एंट्रेंस एग्जाम्स एग्रीकल्चरल साइंस के अंडर और एग्रीकल्चर साइंस के एरिया में एडमिशन लेने के लिए मुझे चाहिए, वो मैंने सारे स्क्रीन पे लिस्ट किए हैं। मैं आपको ये पूरी प्रेजेंटेशन में दो चीज बताऊंगा। पहली चीज मैं बताऊंगा कि एंट्रेंस एग्जाम्स नेशनल लेवल पे कौन कौन से हैं उस पर्टिकुलर एरिया को कैटर करने के लिए, और फिर सब्सिक्वेंट स्लाइड में मैं आपको डिग्रीज भी बताता चलूंगा कि कौन कौन सी डिग्रीज अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर साइंस के एरिया में। एंट्रेंस एग्जाम एज यू कैन ऑल सी नेशनल लेवल पे कौन से काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं एरिया को लेटर करने के लिए। देयर इज आल्सो ICAR, मैं आपको डिग्रीज भी बताता चलूंगा एग्रीकल्चर रिसर्च कौन कौन सी डिग्रीज अवेलेबल हैं नोन एज उस पर्टिकुलर साइंस के एरिया में। काफी यूनिवर्सिटीज JEE मेन के थ्रू भी एडमिशंस देती हैं एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कोर्सेज में। गुजरात के लिए सब स्टेट्स जैसे हैं उनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स भी हैं, जैसे गुजरात के लिए गुजसेट है, मध्य प्रदेश के लिए MP सेट, पंजाब के लिए और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो PAU, यूपी का अपना है, महाराष्ट्र का अपना है, आंध्र प्रदेश का अपना है, हरियाणा का अपना है, छत्तीसगढ़ का अपना है। दे ऑल हैव सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम्स स्टेट वाइज फॉर एग्रीकल्चर कोर्सेज। एंड एग्रीकल्चर कोर्सेज के अंदर डिग्रीज कौन कौन सी अवेलेबल हैं? एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, you have BSc available in agriculture, sericulture, horticulture, forestry, community science, home science, food nutrition and dietetics. These are the BSc degrees, and there is also a set of degrees which come under the umbrella of BE or BTech within agricultural sciences, which can be BTech in agriculture, food technology, dairy technology or biotechnology. These are the degrees available for agricultural sciences. Second comes architecture. आर्किटेक्चर में किस बच्चे को जाना चाहिए जिसका एकेडमिक ओरिएंटेशन और क्रिएटिव ओरिएंटेशन दोनों बहुत हाई हैं? लेटली आर्किटेक्चर काउंसिल ऑफ इंडिया ने जितने देयर आर टोटल 453 आर्किटेक्चर कॉलेजेस इन इंडिया बियॉन्ड IITs, दे ऑल आर इंस्ट्रक्टेड बाय द आर्किटेक्चर काउंसिल ऑफ इंडिया टू कंपल्सरीली टेक ओनली नाटा. सो दैट इज द एंट्रेंस एग्जाम फॉर आर्किटेक्चर. IITs के लिए और एलाइड इंस्टीट्यूशंस जो IITs के लिए हैं उनके लिए JEE मेन पेपर 2 और आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, ये दो टेस्ट भी अवेलेबल हैं जो IITs कंडक्ट करती हैं. देन कम्स okay, I think there is some quick issue. I'll stop screen share. I'll go back to my screen share and again do a screen share with all of you. The screen got stuck somewhere. I think it's okay now. And the degrees which are available in architecture, primarily in the architecture area, BArch, sabko malum hai, which is a 5-year degree program. Also, few colleges are providing degree in the area of BID, that is Bachelor of Interior Design and Bachelor of Planning. These are the 3 degrees which are available in the area of architecture. Next, I move to engineering technology. प्राइमरीली किस बच्चे को इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए जिसका एकेडमिक ओरिएंटेशन बहुत हाई है? पीपल ओरिएंटेशन है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, क्रिएटिव ओरिएंटेशन है नहीं है फर्क नहीं पड़ता. एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से हैं? ऑब्वियसली JEE मेन एडवांस सबको मालूम है. काफी सारे पुराने प्राइवेट कॉलेजेस का ग्रुप ऐसा है जो अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल BITSAT फॉर बिरला इंस्टीट्यूट्स, VIT has multiple institutions pan India, Symbiosis, SIT,
SRM has multiple universities across India. NPAT is for Narsee Monjee. Also, there are some states who take their own entrance exams for their state technical university colleges. For example, Gujarat takes GUJSET, Maharashtra takes its own exam, Karnataka takes its own exam, Andhra Pradesh, West Bengal, they all have their own state level entrance exams. And the degrees which one can opt for after doing science A group and wish to get into engineering and technology area, बच्चा BE या BTech इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जा सकता है, BTech एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें जा सकता है, इंटीरियर डिजाइन में जा सकता है. देयर इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग डिग्री बाय द नेम ऑफ BFTech, बैचलर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर बच्चा जा सकता है. BTech MTech का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकता है, विच इज अ 5-year प्रोग्राम. और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज नई शुरू हुई है, जहां बच्चा 10th के बाद स्ट्रेट अवे 6 साल के डिग्री प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है. This is known as a diploma plus BTech integrated 6-year program. And best part is most of these programs don't require an entrance exam. इसके लिए कोई entrance exam नहीं है. 10th में एक certain percentage है, straight away आप engineering college में चले जाएंगे, 6 साल वहां रहेंगे और 6 साल में आप एक डिप्लोमा और एक डिग्री लेके बाहर आएंगे. नेक्स्ट इज मेडिसिन एंड सर्जरी. अगर आप कॉम्बिनेशन है पीपल और एकेडमिक के, तो मेडिसिन और सर्जरी कैन बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू. एंट्रेंस एग्जाम उसमें कौन सा है? नीट. और डिग्रीज कौन कौन सी आप ले सकते हैं? एमबीबीएस विच इज नोन एज एलोपैथी, बीडीएस डेंटिस्ट्री, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, नेचुरोपैथिक एंड योगिक एंड होम्योपैथिक. These are all degrees which are available in medicine field. Then comes paramedical sciences, again combination of academic and people. Again अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं पैरामेडिकल साइंसेज के अंदर. नेशनल लेवल के एक पैरा सीईटी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुद का एग्जाम लेता है, एयरफोर्स आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज खुद का लेता है, वेस्ट बंगाल का अपना है, जिप मेर का अपना है, पीजीआई मेर चंडीगढ़ का अपना है, IMAT, नीट. दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स व्हिच वन कैन गिव. और उसके अंदर डिग्रीज कौन कौन सी अवेलेबल है? BSc in nursing, medical lab technology, trauma care management. Also one can go for bachelor of optometry, bachelor of occupational therapy, pharmacy, physiotherapy. These are primary degrees available in the area of paramedical sciences. Then come pure sciences. कोई भी बच्चा साइंस ए ग्रुप या बी ग्रुप दोनों में से किसी में से भी प्योर साइंसेज में जा सकता है. टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स कंट्री में KVPY, that is the किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना. Then JEE मेन एडवांस्ड नीट के थ्रू भी काफी प्योर साइंसेज के कॉलेजेस एडमिशन लेते हैं. Then there is a test known as NEST NEST. बिटसेट अपना खुद का एग्जाम लेता है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट खुद का लेता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट खुद का लेता है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी खुद का एग्जाम लेता है. दीज आर सम ऑफ द टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर साइंस. और काफी सारी साइंस में स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं BSc के अंदर, which can include anthropology, applied physical science, biochemistry, bioinformatics, botany, chemistry, biomedical, environmental science, fire and safety, forensic science, filmmaking, geology, genetics, life sciences, mathematics, nautical sciences, physics, zoology, and so on. So I have given you a lot of different specializations in science which are available. Then comes rehabilitation science. इसके अंदर अगेन नेशनल लेवल पे अलग अलग एग्जाम्स हैं, AIOAT, AISH, ET. देन वेस्ट बंगाल का अपना है, भारतीय विद्यापीठ का अपना, जिप मेर का खुद का है, BASLP नेट अलग इंस्टीट्यूशंस को केटर करता है, एंड सो ऑन. डिग्रीज इसमें जो अवेलेबल हैं, दे आर प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, रिहैबिलिटेशन साइंस, स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन. स्पेशल एजुकेशन के अंदर BA, BCom, BSc तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं. Last but not the least is veterinary science. I think I will take 1.5 more minute. Combination of academic and people. Entrance exams में NEET, CE, OUAT, Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, Himachal Pradesh. Then this Jammu has its different university, Jammu and Kashmir. They have their own entrance exams. They're all different entrance exams for veterinary sciences. Veterinary sciences के अंदर primarily 2 ही degrees हैं. One is BVSc and AH, that is Bachelor of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, and second is BFSc, that is Bachelor of Fishery Sciences, right? So these are the degrees which are available in this. One quick thing which I thought I'll share with all the children or anybody who is connected with us in this session. There are some new age career requirements which post COVID-19
सिचुएशन विल फोर्स अपॉन अस। तो अगर हम पहले से अंडरस्टैंड करें कि इन सब चीजों की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी जरूरत है, आप सबको बेनिफिट होगा। नंबर वन, every child must possess basic computer skills, which is not just MS Office, Word, Excel, but further deeper things like you need to be knowing about different types of files, how to transfer data, how to change formats of different types of files, how to crop or do reduction of different sizes of the file, whether visually or from the data perspective. Second, your communication skill has to improve. Irrespective of the fact whether you're an introvert or an extrovert, you will require to communicate, and a lot of things will move digital. And the moment I say digital, even your presentation skill becomes important. And in presentation skill, it is not just the content, but also the process. पहले जब आप आई टू आई कॉन्टैक्ट में मास पब्लिक से इंटरैक्ट करते थे, तो the process was different. Today, when sitting behind a laptop or a computer and addressing a mass public, the process has changed. So you have to build on your presentation skills. Fourth thing is digital skills. आज से पहले बहुत सारी जो ब्रांडिंग मार्केटिंग थी वो फिजिकल स्पेस में होती थी, तो फिजिकल स्पेस में आपका प्रेजेंस जरूरी था। अब क्योंकि मोस्टली चीजें डिजिटल स्पेस में शिफ्ट हो गई हैं, तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्किंग, ये सारी चीजों की नॉलेज आपको होनी जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी 3 क्वालिटीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है अडेप्टेबिलिटी, कोई भी नई सिचुएशन के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी तरह की एग्जिस्टिंग सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑनेस्टी। रीजन बीइंग, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स बिकॉज नाउ हैव शिफ्टेड ऑनलाइन, बहुत सारे लोग आपको स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठ के जज कर रहे हैं। अगर आप ऑनेस्ट नहीं होंगे और सामने वाले ने आपका एक गलत इंप्रेशन बना लिया, तो आपको दोबारा उस प्लेटफॉर्म पे आने का चांस नहीं मिलेगा। सिंपल एग्जांपल देता हूं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मोस्ट ऑफ द टेस्ट्स, एकेडमिक टेस्ट हैव टर्न्ड ऑनलाइन। सो चाहे आप जीआरई की बात करें, आईएलटीएस, टॉफल की बात करें, दे हैव मूव्ड ऑनलाइन। और ऑनलाइन में वो डिस्टेंस प्रॉक्टर्ड एग्जाम होता है, और अगर आपके प्रॉक्टर ने एक बार आपको कोई डिसऑनेस्ट काम करते हुए पकड़ लिया या उसको शक भी हुआ, तो you will be barred from given that exam lifelong. So you need to be extremely, extremely honest. Before I close, I would like to thank Abhishek, Malay bhai, Jigish bhai, Tejas bhai, and Jito for their invitation. And I'm so excited. I wish all the best for a very successful event throughout the day. I'll open the questions, forum. If you have any questions, please feel free to ask. Mohit sir, we have got a question on a Facebook Sir. from our viewers. Okay, the question is that does selection of board also helps for career option or for a better career growth? Okay, I think sir this is an excellent question. Let me address that. हमारी जो MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD है, वो बहुत स्ट्रांगली एक चीज कर रही है to bridge the gap between all the boards. I'll quickly take half a minute to explain. इंडिया में 5 तरह के प्राइमरी बोर्ड्स अवेलेबल हैं. We have international board, we have Cambridge board, which are 2 international boards. We have ICSE or ISC board, CBSE, and I'm categorizing all state boards under the 5th category. हर स्टेट का अपना बोर्ड है, तो 5 कैटेगरी ऑफ बोर्ड्स हैं. क्या हो रहा था, हर स्टेट के बोर्ड का लेवल अलग अलग हो रहा था. सो फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स सीबीएसई ने बोला हर बोर्ड की हर क्लास हैज टू बी इन लाइन और लेवल विद एनसीईआरटी. उस केस के अंदर जो सिलेबस बच्चा कवर करता है या जो एकेडमिया बच्चा पढ़ता है, वो गैप ब्रिज हो गया है. सेकंड, because most of the institutions either take children based on competitive exams, तो वहां बोर्ड का रेलेवेंस वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि किसी तरह के कोई बोर्ड की कोई रिजर्वेशन किसी तरह की यूनिवर्सिटी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं है. सो बोर्ड रियली डज नॉट मैटर फॉर करियर ऑप्शंस. प्राइमरीली स्टेट्स के अंदर भी कोई टाइम था जब स्टेट बोर्ड्स को स्पेशल बेनिफिट दिया जाता था, लेकिन अब मेजॉरिटी स्टेट्स ने क्या किया है,
दे से कि बच्चा स्टेट की ज्योग्राफी के अंदर बने स्कूल में से पढ़ा होना चाहिए। बोर्ड मैटर नहीं करता, वो बच्चा इंटरनेशनल बोर्ड से पढ़ा है, स्टेट बोर्ड से पढ़ा है कि सीबीएसई से पढ़ा है, इट डज नॉट मैटर। सो देयर इज नो फंडामेंटल रिजर्वेशन except in very, very, very minute number of specific cases or specific universities. So board does not matter. Everything is open. CBSE के बाद foreign education में जाना है, you can go. IB के बाद Indian education में जाना है, you can go. Board does not matter. Thank you very much. I think that was one of the most interesting questions we had dare on to ask. And thank you very much for guiding all of our students, parents, and all the people who have joined this webinar or career counseling webinar, whatever it is. Sir, thank you so much. I have overshot 5 minutes. I'm sorry. I consumed 5 minutes of Tejas bhai. Thank you very much. Good day to everyone.